Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and welcome to my live session. So before going live, let me go and check myself on other platforms and see if I can see myself live over there. And in the meantime, do let me know what do you think about today's session, what do you think I plan to talk about. So थोड़ा बहुत आपको clear हो गया what is my intention behind this topic. But obviously I'm just going to get into the topic right away. Before that, just let me go and check myself. और आप में से जो भी जहाँ कहीं से भी लॉगिन कर रहे हैं मुझे वो भी बता दीजिए कि आप लोगों का ताल्लुक कहाँ से है और देन वी कैन जस्ट स्टार्ट राइट अवे. सो about today's session, actually, so it's again it's something very important and it's a topic which is linked with one of the few topics I covered previously, not in the last sessions, but a few months back. So it's linked with that particular topic. और चूँकि इसमें जो है ज़्यादा हमारे वो हजरात जो कि ऑनलाइन काम करते हैं और ज़्यादा रिमोट वर्किंग सेटअप में हैं, so this topic, this session is going to address specifically those people. Along with it's going to address the parents, is going to address the Gen Z alike, and it's going to address many people. So everyone, yeah, anyone who is seeking guidance regarding this particular area, which is how you as a whole, as an individual, as a parent, as an educator, as a as a Gen Z, as an individual, are going to protect yourself from the online dangers. Our online dangers kya hai? I'm just going to get into that topic just in a moment. Okay, so I can see myself live at the other platform and let's see आप में से कौन हैं जिन्होंने मुझे join कर लिया है. So I am able to take your comments on the other side. Okay, so you know what, let me just open the other window ताकि मैं आप लोगों के साथ directly communicate कर सकूं. Okay, as far as this topic is concerned, so you know what, not every friend request, it's a friend request. So it comes with many dangers, which is intertwined, which is twisted, which is covered, which most of us are unable to see. क्योंकि ये जो friend requests होती हैं, they come in many forms. Especially I would be talking about especially when it comes from the opposite side, opposite gender. अगर like if you're a female तो आपको जो है मेल रिक्वेस्ट होंगी, मेल फ्रेंड्स रिक्वेस्ट होंगी. इफ़ यू आर अ मेल तो आपको फीमेल फ्रेंड रिक्वेस्ट होंगी. सो द बेसिक थिंग इज़ कि भाई आप जो है इन ऑनलाइन डेंजर्स को किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं. क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेंड रिक्वेस्ट या व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेंडशिप्स, तो it's not necessary कि all are going to be genuine. So there are many friendships which are which are disguised. क्योंकि as a matter of fact, as an individual, you won't be able to understand कि भाई back end पे क्या है, why is this request sitting in your inbox, इसके पीछे क्या मकासद हैं. So I won't say कि भाई सारी ही जो है यानी you are going to treat everyone on the same level, but yes, there are many जिनको जो है जिनकी treatment की ज़रूरत होती है. और वो treatment क्या होता है, it's just that you have to be aware and you have to protect yourself. That's the basic thing. So you know what, मुझे जो है I am having this issue regarding seeing myself on the other platforms, but I'm just going to start with my mobile display जहाँ पर मैं जो हूँ इस वक्त अपने आप को देख सकती हूँ. So जो भी messages आएंगे I'll try to read it from down below. Otherwise I would be just looking at the other screen और उसमें जो है ना अगर थोड़ा मसला हो आएगा. ओके, सो जिस तरह मैंने आपको बताया कि भाई जो फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है ना, इट्स नॉट एवरी फ्रेंड रिक्वेस्ट, इट्स जस्ट अ फ्रेंड रिक्वेस्ट. उसके पीछे कई मोटिव्स होते हैं. एज एज अ पर्सन, अब हर इंसान की जो है मेंटल कैपेसिटी डिफरेंट होती है. हर एक का जो एक्सपोजर है टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स पीपल, जो इन्वायरमेंट है वो टोटली डिफरेंट होता है.
अगर आप जो है यंग एज के हैं, लाइक व्हेन आई टॉक अबाउट द जेन जी, द यंगर जनरेशन, या जो हमारी यूथ है, जो ख़ास तौर पे आर इन वेरी द टेंडर एजेस। अब वो जो टेंडर एजेस हैं उस एज में जो है इट्स कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई दूसरे एंड से जो फ्रेंड रिक्वेस्ट हैं उनका क्या मोटिव है, वाई आर दे देयर, वो आपको जो है क्यों फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। सो दीज आर सम ऑफ द डेंजर्स जो कि अगर आपको एनगल्फ कर लें एज अ यंग इंडिविजुअल, एनगल्फ कर लें, या बहुत से लोग हैं जो कि बहुत मेच्योर एज में भी धोखा खा जाते हैं। सो इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी अवेयर। और वो कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं या कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो कि आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने जो है बच्चों को या जो आपके लव वंस है, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम दीज ऑनलाइन डेंजर्स। सिंस इट्स ऑनलाइन वर्ल्ड, everything is going online, everything is being digitized. So जो real value जो रियल जो है इंसानी जो है कनेक्शंस हैं वो बहुत कम हो गए हैं। सो ज़्यादातर जो लाइफ है इट हैज़ बिकम मच मोर ऑफ ऑनलाइन। सो ऑनलाइन कम्युनिटीज़, ऑनलाइन इंटरेक्शंस, ऑनलाइन रिमोट वर्किंग, सो एवरीथिंग हैज़ गॉन ऑनलाइन। सो ये जो ऑनलाइन डेंजर्स हैं इनको भी जो है इनसे भी अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए देयर सर्टेन स्ट्रैटेजीज विच एज अ पेरेंट, इफ़ यू आर अ पेरेंट और आप अपने बच्चों के लिए जो है गाइडेंस सीख कर रहे हैं, तो दिस सेशन इट्स फॉर यू। अगर आप वो इंडिविजुअल हैं जो कि इस सेशन के थ्रू जो है कोई गाइडेंस सीख कर सकते हैं एंड यू लुकिंग फॉर दैट पर्टिकुलर गाइडेंस, सो दिस सेशन इज़ फॉर यू एज वेल। एंड देन अगर आप जो है वो लोग हैं, यानी आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे हु मस्ट हैव गॉन थ्रू द सिमिलर फेजेस और आपको अपने टाइम में जो है डायरेक्शन ही मिली होगी या ऐसे जो है आपको एडवाइसेस नहीं मिली होंगी जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में जो है कोई इम्प्रूवमेंट की हो। येस, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम व्हेन यू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर थिंग, व्हेन यू गो थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस, so you do get the exposure, you do get the experience, and then you are in that position कि आप किसी और को guide कर सकें. So this session is going to be helpful for everyone who's seeking guidance in this particular direction. Let me just take your comments side by side. M nice, you're saying अस्सलाम वालेकुम, nice topic. Okay, वालेकुम अस्सलाम and thank you so much for your compliment कि आपको ये जो है टॉपिक अच्छा लगा है। यस, नहीं भाई मुझे फीवर नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। आई एम मच बेटर। इट्स जस्ट दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई देर आर टाइम्स व्हेन आई माई सेल्फ कॉन्शियसली डू नॉट कम लाइव फॉर मैनी रीजन्स। सो अभी तो जो है अल्लाह का शुक्र है, आई एम फाइन, आई एम मच बेटर, आई एम डूइंग ओके। So, but then again, there are certain things, there are certain topics which I feel myself कि भी इन पे बात होनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पे मुझे जो है लोग उस डायरेक्शन में बात करते हुए नहीं नज़र आते। सिंस आई ट्राई कि मैं लोगों को ज़्यादातर लाइफ स्किल्स कोचिंग जो है कर सकूँ, उनकी जो है जो लाइफ है उसको जो है बेहतर बना सकूँ और उसमें कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर सकूँ। सो दैट्स द रीज़न आई डू दीज सेशंस, ताकि मैं लोगों को एजुकेट कर सकूँ। Muhammad Adil, thank you so much for joining and watching. Okay, sending vibes and blessings for you. Okay, thank you so much. I'm nice. Thanks a lot. Okay, you know what? Let's get back into my topic. So, वो कौन सी ऐसी strategies हैं जो कि आप जो है खुद भी अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने लव वंस को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, ताकि जो ऑनलाइन डेंजर्स हैं उनसे वो बच सकें। सो उसमें जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है, यू हैव टू सी कि भाई व्हाट्स दैट फ्रेंड मास्क। जो आपको फ्रेंडशिप भेज रहे हैं उसके पीछे क्या मोटिव है उनका। क्योंकि यू नो व्हाट, इट एट टाइम्स अगर आप टेंडर एज के हैं, यंग एज के हैं, इमेच्योर हैं, एमेचर हैं, नॉन एक्सपीरियंस हैं, तो आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती। सो उसमें जो है यू सर्टन जो है ना रेड फ्लैग्स होते हैं। तो वो जो रेड फ्लैग्स होते हैं ना, दे हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग कि ओके दीज आर रेड फ्लैग्स। अब तो यू नो दीज टर्म्स, दे आर वेरी एडवांस टर्म्स, बट ये है कि अगर जो है पुराने ज़माने में जो है आप अपना जो है बचपन देखें या अपने जो है पेरेंट्स को देखें कि उन्होंने आपकी किस तरह ट्रेनिंग की, तो देर वर सर्टन रेड फ्लैग्स जो कि हमारे लिए होते थे कि भाई if so and so thing happens या if so and so person approaches you, तो these are the red flags। उससे आपने जो है
बच के रहना है। सो ये जो रेड फ्लैग्स है, अब चूँकि डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल टाइम है, लोग जो है बच्चे इनफैक्ट बहुत ज़्यादा जो है डिजिटाइज है, सो उनका एडवांसमेंट लेवल जो है हमसे कहीं ज़्यादा है। और उन बच्चों को जो है एजुकेट करने के लिए या इस चीज़ से तंबी करने के लिए कि भाई आपने अपने आप को किस तरह ऑनलाइन डेंजर से प्रिवेंट करना है, तो देन यू आर गोइंग टू यूज़ द टर्मिनोलॉजी जो कि उनको अंडरस्टैंड करने में ईजी हो और जो उनको समझ भी आती है। सो जिस तरह डिजिटल वर्ल्ड है, तो अगर कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो आपने फ्रेंड मास्क देखना है। अब वो फ्रेंड मास्किंग क्या होगी? फ्रेंड मास्किंग में इट कैन स्टार्ट विद वेरी सिंपल कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट होता है, देन देर आर लेट नाइट चैट्स, ये सारे जो है एक रेड फ्लैग होते हैं। तो अगर जो है अगर कोई आपसे जो है ऑनलाइन आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे और कोई आपको ये कहे कि भाई मेरे से ज़्यादा तो आपको कोई अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकता, दिस इज़ अगेन अ रेड फ्लैग। भाई वो माँ बाप जिन्होंने आपको पाला है, वो बहन भाई जिनके साथ आप बचपन से लेकर जवानी तक बड़े हुए हैं, अगर वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो ये जो 2 दिन का जो है कि दोस्ती है, 2 दिन की फ्रेंडशिप है, क्या वो लोग आपको अंडरस्टैंड करेंगे? बट देन दैट्स अगेन अनदर स्टोरी, क्योंकि नॉट एवरी वन हैज़ अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स। इसमें अगेन आई वुड से पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर पेरेंट्स अपनी ड्यूटी रियलाइज़ कर लें, अगर पेरेंट्स ये रिकगनाइज करना शुरू कर दें कि भाई बच्चों को पालना, उनको ग्रूम करना, उनकी तरबियत करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समवन एल्स। सो आपने अपने बच्चों को खुद पालना होता है, खुद ग्रूम करना होता है। एंड देन जब आप बच्चों को ग्रूम करेंगे, ओके, आई एम गोइंग टू कम टूवर्ड्स द रोल ऑफ पेरेंट्स टूवर्ड्स द एंड, बट सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भाई वो कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिनसे आप अपने आप को ऑनलाइन प्रिवेंट कर सकते हैं। हारून अली, आप कह रहे हैं काश लोग जैसे होते हैं वैसे ही नज़र भी आए। येस, आई 100% एग्री विद यू, बट लोग जैसे होते हैं आमतौर पर लोग वैसे नज़र नहीं आते। एंड इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, यू कैन एसेस पीपल, इट्स जस्ट दैट कि everything, it requires observation, it requires deep analysis, it requires you to understand the nature of people, कि कोई किस तरह क्यों एक्ट करता है। बट देन देर आर सर्टन थिंग्स जो कि आप अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकती हैं। जब हम बात करते हैं ना कि बुक्स आर द बेस्ट कंपनी, तो वो किसी वजह से ही बात करती हैं। इट्स नॉट दैट कि बुक्स में जो है बुक्स में आपको जो है दोस्त मिल जाते हैं, बट बुक इन इटसेल्फ इज़ योर बिगेस्ट फ्रेंड। सो वो जो लोगों को होता है कि जी आपके जो फ्रेंड्स हैं वो जस्ट बुक्स हैं, सो बुक्स में जो है आपको फ्रेंड्स भी मिलते हैं और बुक्स आपको वो कुछ सिखाती हैं जो शायद आपके साथ बैठे हुए 10 लोग भी आपको नहीं सिखा सकते। सो जो लोगों की ज़िंदगी के असासे होते हैं, एसेट्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होती हैं, वो सब कुछ जो है ना बुक्स में आपको जो है ना एक एसेंस मिला होता है। चाहे वो जो है 2 सफ़ों की बुक है, चाहे वो जो है 250 की है, चाहे वो 1000 सफ़ों की है, यू आर ड्राइविंग आउट दैट इतर फ्रॉम दोज बुक्स। So coming back to my topic, this was regarding आपके जो है answer toward what you said. Mohammad Akhtar, okay, thank you so much for your kind regard, kind compliments, thank you so much. Okay, Harun Ali, okay, you're talking about me. आपको लगता है मैं जैसी नज़र आती हूँ मैं वैसी नहीं हूँ? Okay, I don't know आप किस context में बात कर रही हैं। So I'm not going to give any justification unless and until I know कि आपने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की, only then I'll be able to answer. Okay, so you know what, this is the number one thing कि जो रेड फ्लैग्स होते हैं ना, आपने उन रेड फ्लैग्स पे अपने कान जो है खुले रखने होते हैं। चाहे वो कॉम्प्लीमेंट है, चाहे वो जो है समझ आ जाती है। इट्स जस्ट दैट कि आपको जो है ना यू हैव टू लुक बियॉन्ड थिंग्स, यू हैव टू लुक आउट ऑफ द बॉक्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि भाई लोगों के क्या मोटिव्स हैं। ओके, देन अगेन अगर मैं बात करूँ तो सेटिंग बाउंड्रीज इट्स वेरी नेसेसरी, क्योंकि अगर आप जो है ना बाउंड्रीज नहीं सेट करेंगे या आप अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे कि भाई एक टाइम होता है जब आपने बाउंड्रीज सेट करनी है। और वो बाउंड्रीज क्या होती हैं, दीज आर वेरी सिंपल बाउंड्रीज। इफ़ someone does not respect your personal space, या आपके पर्सनल जो है जो टाइम है उसको रिस्पेक्ट नहीं करता कोई, तो यू हैव टू ड्रॉ अ बाउंड्री। लाइक इफ़ आई नो कि भाई मेरी पर्सनल स्पेस क्या है, इफ़ आई से अगर मैं किसी को कहती हूँ भाई मेरी पर्सनल स्पेस ये है कि मैं इस टाइम तक काम करती हूँ, से
जो नॉर्मल टाइम्स होते हैं हमारे पाकिस्तान के टाइम्स जो नॉर्मल होते हैं, मोस्टली लोग जो है सुबह जो है 10 या जो ऑफिस गोइंग होती हैं उनके जो है 8-9 o'clock ऑफिस स्टार्ट हो जाते हैं एंड देन 5-6 तक उनके भी ऑफ हो जाते हैं. एंड इफ़ यू आर इन टू अ रिमोट सेटिंग इट डिपेंड्स कि भाई आपके क्लाइंट्स जो है कहाँ के हैं. इफ़ देर फॉरेन क्लाइंट्स तो फिर आप उनके मुताबिक अपने टाइम रखेंगे. बट देन अगेन आपका जो है एक टाइम होता है कि लाइक अगर आप कहते हैं कि जी मैं अपना टाइम जो है 6 o'clock ऑफ कर देती हूँ, तो 6 o'clock के बाद अगर कोई आपको जो है कॉल करे तो आई थिंक कि यू नीड टू टेल द पर्सन कि भाई ये मेरा ऑफ टाइम है, सो डोंट कॉल मी एट दिस टाइम. या हो सकता है 6 o'clock के बाद आपके अपने जो है अपने टाइम टेबल्स हों, अपने स्केड्यूल्स हों. मे बी यू आर हाउस वाइफ, मे बी यू आर फैमिली वूमेन, मे बी आपके बच्चे हैं, आप उनकी टेक केयर कर रहे हो एंड यू आर नॉट इन दैट पोजिशन कि आप जो है देन यू टेक अ वर्क कॉल. ऑब्वियसली यू नो व्हेन यू सेट बाउंड्रीज तो तभी तो लोगों को पता चलेगा होगा दिस इज योर बाउंड्रीज. अगर जो है यू आर नॉट गोइंग टू सेट बाउंड्रीज, सेम इज विद जेन जी, अगर वो जो है नहीं बताएंगे या अगर पेरेंट्स जो है जो अपने बच्चे हैं उनको नहीं बताएंगे कि भाई आपने अपनी बाउंड्री सेट करनी है, तो फिर कोई भी जो है आपकी पर्सनल स्पेस को जो है यू नो इन्वेट कर सकता है. सो इफ़ यू आर पर्टिनेंट अबाउट योर बाउंड्रीज तो सेट दोज बाउंड्रीज. और उन बाउंड्रीज में यही आता है कि भाई आप जो है अपने जो पर्सनल डिटेल्स हैं डोंट शेयर दोज पर्सनल डिटेल्स, क्योंकि ये भी आपकी प्राइवेसी जो है इन्वेट करने वाली बात है. अब जब मैं ऑनलाइन डेंजर्स की बात करती हूँ और वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि ओके अगर मेरे से ये चीज़ पूछी जा रही है तो दिस इज़ अ रेड फ्लैग. अब दिस इज़ अ रेड फ्लैग अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आपके जो है आप कहाँ पढ़ती हैं, आप जो है किस स्कूल में जाती हैं या किस कॉलेज में जाती हैं, आप किधर रहती हैं, आपकी जो है क्या हॉबीज़ हैं, यू नो दीज आर वेरी पर्सनल क्वेश्चंस. अब ये जो पर्सनल क्वेश्चंस हैं ये तो आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं या आपके बहुत ज़्यादा कोई जो है जो फ्रेंड्स हैं, जो अच्छी फ्रेंड्स हैं, जो रियल लाइफ फ्रेंड्स हैं. यू नो इफ़ यू आर फीमेल और आपकी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं और वो आपकी जो है बेस्ट बडीज़ हैं, तो आप उनको आपके बारे में पता होगा. बट व्हेन वी टॉक अबाउट मेल फ्रेंड्स, चूँकि यहाँ पर जो है यू नो इफ़ आई से like I'm not going to talk from one particular point, I'm talking generally में जो है जिस तरह के जो है आप माशरे में जो है परवान चढ़ रहे हैं, जिस तरह के एजुकेशनल सिस्टम्स में आप पढ़ रहे हैं, तो इट इज़ वेरी ओपन फॉर पीपल टू हैव बोथ मेल एंड फीमेल फ्रेंड्स. बट देन अगेन उसमें भी जो है यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि आपकी जो है लिमिट्स क्या हैं, आपके कल्चरल एथिक्स आपको क्या अलाउ करते हैं, आपके क्या प्रायोरिटीज़ हैं, उसके मुताबिक आपने फ्रेंड्स रखने हैं. और इवन जो है उधर भी आपने अपनी बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करने हैं. सो यू नो व्हेन टॉकिंग अबाउट बाउंड्रीज, अगर बाउंड्रीज नहीं होंगे तो फिर जो है नो वन इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई वेयर यू स्टैंड, आपके जो है बैक ऑफ द माइंड में क्या है और आपने दूसरे को किस तरह एड्रेस करना है. ओके, लेट मी जस्ट टेक योर कमेंट्स. लेट मी सी. मोहम्मद नाइस आप कह रहे हैं यस बुक इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज. भाई बुक्स तो ख़जाना होते हैं अगर आप उनसे फैज़ याब होना चाहते हैं. हारून अली आप कह रहे हैं इन पास समवन डिड वेरी गुड टू यू व्हेन यू वर वर्किंग near and uni office but when she needed you you were not there. अच्छा, when she needed you you were not there. आई डोंट नो आप किसके रेफरेंस से हारून अली बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में. हारून अली आई डोंट नो आप किस रेफरेंस से बात कर रहे हैं. सो यू नो आई विल हैव टू गो टू योर प्रोफाइल एंड सी. आई डोंट नो आप ये यानी आप किस खातून के बारे में बात कर रहे हैं, किसी बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, या यू आर ट्राइंग टू कोट सम काइंड ऑफ एग्जाम्पल. तो आप जो भी एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं प्लीज़ मेंशन द नेम सो आई नो कि भाई एग्जैक्टली जो है आप किस ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं, ताकि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जब होगा तो मैं तभी जवाब आपको दे सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं हवा में बातों के जवाब नहीं दे सकती. ओके, सो कमिंग बैक टू माई टॉपिक. नंबर 1 वर्स कि भाई आपने जो फ्रेंड्स मास्किंग होती है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी होती है कि भाई एट द बैक एंड क्या मोटिव्स हैं. यू हैव टू स्टडी दोज मोटिव, यू हैव टू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए आपकी.
सेकेंड चीज़ जो मैंने आपको बताई कि भाई आपने बाउंड्रीज सेट करनी है, आपने देखना है कि भाई वो कौन सी हेल्दी बाउंड्रीज हैं जो कि आप लेकर चल सकती हैं। अगर कोई जो है आपसे जो है खामखा के जो है पर्सनल चीज़ें पूछ रहा है तो दैट इज़ इन्वेडिंग योर बाउंड्रीज। तो आपने वो हेल्दी बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करनी है। सिर्फ जनरली हद तक जो है लोगों को बताएं ओके भाई अगर आप जो है सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हैं तो आप क्यों सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हैं, आप क्या करें सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, आपका क्या काम है। सी दीज आर द जनरल थिंग्स। बट अगर कोई जो है सोशल प्लेटफॉर्म के अदर देन दैट कोई आपसे पूछने की कोशिश करे, लाइक मोस्टली मैं जो अक्सर लोगों को देखती हूँ छोटे साथ जो है उनका पहला सवाल ये होता है भाई आप कहाँ रहती हैं। वो भी मैं जहाँ पर भी रहती हूँ तो दैट्स नॉट योर कंसर्न। ओके चलें, क्योंकि दिस इज़ अ पर्सनल क्वेश्चन, व्हाई वुड एनीवन बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आप कहाँ रहते हैं। भाई आज कल आप जो है सोसाइटी की सूरत हाल नहीं देख रहे, आप माशरे के हालात नहीं देख रहे। जिसको पता होता है कि भाई आप कहाँ रहते हो वो आपके घर पहुँच जाते हैं एंड देन गॉड फॉरबिड बहुत बहुत हादसा हो जाते हैं। सो इफ़ यू आर अ मैच्योर पर्सन यू नीड टू कीप योर सेल्फ सेफ। आप जो है अपना घर का एड्रेस जो है लोकेट करके जो है सबको डेंजर में डालेंगे ना, अपने आप को भी डेंजर में डालेंगे, अपनी फैमिली को भी डेंजर में डालेंगे, अपने लव वंस को भी डेंजर में डालेंगे। सो व्हाई डू दैट। या तो आपका कोई वर्क स्पेस है, आपका कोई ऑफिस एड्रेस है, आप कहीं किसी ऑफिस में काम करते हैं या किसी सेटअप में है तो यू कैन ऑलवेज यू नो। बट देन अगेन इफ यू नो द पर्सन, आपको पता हो कि भाई बैक एंड पे क्या मोटिव है, सो ओनली देन यू कैन शेयर द एड्रेस। बट देन अगर आप ऑफिस एड्रेस भी शेयर करते हैं इट्स नॉट 100% गारंटी कि भाई जो बैक एंड पे जो है जिसके साथ आप जो है शेयर कर रहे हैं दैट पर्सन इज़ अ सेफ पर्सन। वो आपके जो है जो ऑफिस एनवायरनमेंट है उसको आकर इन्वेड नहीं करेगा या कुछ जो है ऐसे हरकत नहीं करेगा जिससे जो है आपकी रेपुटेशन एट स्टेक आ जाए। तो यू हैव टू बी केयरफुल। जस्ट वर्किंग ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म डज नॉट गिव एनीवन द राइट कि वो आपकी जो है प्राइवेसी या बाउंड्रीज को इन्वेड करे। अच्छा देन इसमें एक और जो चीज़ आती है यू हैव टू स्पॉट मैनिपुलेशन, क्योंकि मैनिपुलेशन इट्स वेरी कॉमन और अक्सर लोगों को समझ नहीं आती कि भाई ये जो है क्या ट्रिक प्ले की जा रही है, क्योंकि बाज़ लोग इतने जो शातिर होते हैं ट्रिक्स प्ले करने में कि वो किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं। सो द थिंग इज़ कि भाई हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि भाई कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर रहा। सो देर आर वेरी सिंपल थिंग्स जिससे आपको समझ आ जाती है। कोई आपको जो है गिल्ट ट्रिप करने की कोशिश कर रहा हो, कोई ऐसी बात कर दे जिसमें जो है यानी यू नो एज अ पर्सन यू नो कि भाई गलती जो है मेरी है, बट दूसरा जो है आपको ब्लेम कर रहा है, आपको गिल्टी ठहरा रहा है ना कि भाई ये जो ये चीज़ ऐसी है तो यू फील गिल्टी। लाइक अगर आप जो है किसी को से यू हैव बाउंड्रीज, आप किसी को रिप्लाई बैक नहीं कर रहे तो अगला जो बंदा है या अगली जो बंदी है वो आपको कह रही है या कह रहा है कि जी आप मुझे जो है अगर रिप्लाई नहीं करते इट मीन्स यू डोंट केयर फॉर मी। तो दिस इज अगेन अ रेड फ्लैग, दिस इज मैनिपुलेशन। और भाई कोई जो है बिजी भी हो सकता है द अदर पर्सन डज नॉट यू नो हैज अदर थिंग्स अदर प्रायोरिटीज। सो ये मैनिपुलेशन में आ जाता है कि आप किस तरीके से इमोशंस का यूज़ करके जो अगले को मैनिपुलेट करते हो। अगला जो है फील्स के गिल्टी फील करता है ना कि भाई मैंने किसी को जो है रिस्पॉन्ड बैक नहीं किया तो आई फील गिल्टी, क्योंकि आप उसको गिल्टी ठहरा रहे होते हो। people have their own values, they have their own priorities। हर एक जो है like those people who are sitting on social platforms, तो social platforms पे भी वो अपना काम करें and they are not sitting over there कि आपका यहाँ मैसेज आया वो टक से आपको रिप्लाई कर दें, उनके पास नहीं टाइम होता। तो जब उनके पास टाइम होता है, अगर आपका जो है कोई ऐसी जो है कोई रिक्वायरमेंट है या कोई ऐसा आपका मैसेज है which is work related and that needs to be addressed, only then the people address you। बट अगर आपका ये ख्याल है कि भाई वो सोशल प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं तो वो आपके हर जो है हर मैसेज का जो है तुर्की ब तुर्की जवाब देंगे, तो इस तरह नहीं होता। सो दिस इज अगेन इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैनिपुलेशन। तो आपने ये मैनिपुलेशन अंडरस्टैंड करनी है। एंड द सेम गोज फॉर पेरेंट्स जो कि अपने जो बच्चों को जो है गाइड कर रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को समझाना है कि भाई इस तरीके से लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, खामखा आपकी अटेंशन डिमांड करते हैं। आप देखें देर आर सो मैनी पीपल जो अपनी डे टू डे लाइफ्स में अपने काम में जो है बिजी होते हैं, बट देन देर आर सर्टन पीपल जो कि हर टाइम जो है आपकी जो है अटेंशन जो है
चाह रहे होते हैं, वो ये चाह रहे होते हैं यहाँ पर वो मैसेज करें, वहाँ फ़ौरन आप उनके मैसेज का टक से जवाब दे दें. सो दीज पीपल आर अटेंशन सीकर्स. या आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, आपका जो प्रोडक्टिव काम है उसमें एक खलल पैदा करते हैं. सो आपका जो प्रोडक्टिविटी का टाइम होता है वो निकल जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों को आप जब बार बार एड्रेस करते हैं, उनके मैसेजेस का जवाब देते हैं, तो आपका टाइम जो है ज़ाया होता है एंड यू आर अनएबल टू डू योर प्रोडक्टिव वर्क. सो आपका टाइम बहुत कीमती है, हर एक का टाइम कीमती है. तो जहाँ पर आप अपने टाइम को, एंड अगेन यू नो आई सी दिस एंड आई एक्सपीरियंस दिस सो मैनी टाइम्स कि लाइक अगर जो है लाइक आपके अपने जो है फ्री टाइम्स होते हैं, उस फ्री टाइम में होके आप जो है एड्रेस कर सकते हैं लोगों के प्रॉब्लम्स. अगर कोई हैं, किसको जो है, किसका प्रॉब्लम कितना जो है एक्यूट है, उसको किस तरह एड्रेस करना है, यू मेक टाइम फॉर दोज प्रॉब्लम्स. बट अगर जो है किसी के बैक ऑफ द माइंड पे ये हो कि ओके भाई ये मेरा जो है फ्री टाइम है या ये मेरा लंच टाइम है, तो इस लंच टाइम में मैं जो हूँ अगले को टक 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 करके मैसेजेस करूँ, या जो है यू नो विदाउट टेकिंग एनी टाइम जो है अगले को कॉल करने बैठ जाऊँ कि अगले का कोई टाइम नहीं है. इट डजेंट मैटर कि अगला जो है काम कर रहा है या उसका टाइम कीमती है. So this again comes under the category of manipulation. So you have to be aware regarding that. अच्छा, फिर अगर जो है अगेन अगर मैं पेरेंटिंग की बात करूं, या अगेन मैं बात करूं कि भाई वो कौन से साइंस हैं जिनसे आपको पता चल जाता है, जो कौन से ग्रूमिंग साइंस हैं जो आपको बता देते हैं कि ओके यहाँ पर जो है समवन इज ट्राइंग टू यू नो मैनिपुलेट यू. या कौन से वो बिहेवियर्स हैं जो कि आपको जो है रेड फ्लैग जो है ना शो कराते हैं. लाइक अगर कोई जो है आपसे जो है पिक्चर मांगे, कैन बी एनी इनोसेंट पिक्चर, इट्स नॉट नेसेसरी कि किसी किस्म की भी पिक्चर हो, कोई इनोसेंट पिक्चर भी हो सकती है, कोई ऐसा जो है यू नो सेल्फलेस जो है, यानी कोई नुकसान ना देने वाला डेयर भी हो सकता है. तो ये वो सारी चीज़ें हैं विच इज़ अ यू नो इट्स अ रेड फ्लैग, इट्स अ साइन ऑफ दैट बिहेवियर जिसको आपने एड्रेस करना है. और जब आप ऐसे बिहेवियर्स को एड्रेस करना शुरू कर देंगे और एक्नॉलेज करना शुरू कर देंगे, ओके फलाने ने जो है मेरे से मेरी तस्वीर मांगी है, तो दिस इज़ नॉट समथिंग, दिस इज़ नॉट नॉर्मल, दिस इज़ अगेन कि भाई कोई आपको जो है ऑनलाइन मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है. सो आपने जो है अपने बच्चों को ये चीज़ बतानी है, ये चीज़ समझानी है, ये चीज़ सिखानी है कि भाई कोई भी चीज़ जो है, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो पिक्चर फॉर्म में हो, वंस इट गोज़ ऑनलाइन, इट्स ऑनलाइन, उसको कोई भी किसी तरीके से भी यूज़ कर सकता है. सो ये चीज़ें आपने एज अ पेरेंट, अगर आप पेरेंट हैं तो आपने अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखानी है. अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप खुद ये चीज़ें फेस करते हैं, खुद इस तरह की हरासमेंट्स फेस करते हैं, तो यू हैव टू बी अवेयर कि भाई मैंने अपनी पिक्चर्स शेयर नहीं करनी. सी, being a public figure, it's a different thing. If you're educating people, it's a different thing, but you're not a public property. So आप अगर जो है अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स को जैसे भी यूज़ कर रहे हैं एज अ पॉलिसी, तो यू आर ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. आप जिस कंट्री को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप आइडेंटिटी है ना, यू आर अ पार्ट ऑफ दैट कंट्री. सो आपने अपनी आइडेंटिटी खुद तो नहीं ख़राब करनी ना. अब जो भी आप जो है ऑनलाइन काम करेंगे, जिस भी फॉर्म में करेंगे, इफ़ इट्स नॉट गोइंग टू यू नो, इफ़ इट डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एथिक्स, तो यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज. सो कोई ऐसा काम ना करें जिससे जो है आपकी इज़्ज़त ख़राब हो, आपके मुल्क की इज़्ज़त ख़राब हो, आपकी फैमिली की इज़्ज़त ख़राब हो. सो यू हैव टू मेंटेन अ सर्टन प्रोटोकॉल. एंड एज़ फॉर द जेन ज़ी, एज़ फॉर द यंगस्टर्स, उनको चीज़ें बतानी पड़ती हैं. सो इफ़ यू आर अ पेरेंट, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों को बताएं कि अगर आप ये काम करेंगे तो आप अपने आप को इस किस्म के डेंजर्स में इन्वॉल्व करेंगे या डालेंगे जो आपने नहीं करना. देन यू नो वॉट, अगेन अगर मैं बात करूँ, सो दिस वॉज कि भाई ग्रूमिंग साइंस हैं कि भाई कोई आपसे आपकी तस्वीर मांग रहे, या कोई जो है जिस तरीके से लाइक आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो है चैट कर रहे हैं, कोई आपको कहे कि भाई अच्छा ये पब्लिक चैट, ये जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, लाइक अगर कोई आपसे मैसेंजर में बात करे तो वो आपको कहे कि नहीं भाई आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर देते हैं, नहीं भी आप मुझे अपना नंबर देते हैं. तो जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म से, नॉट अनलेस लाइक इफ़ यू आर अ बिजनेस पर्सन, तो आपका जो बिजनेस नंबर होगा, बिजनेस नंबर भी देने से पहले यू हैव टू आस्क द अदर पर्सन कि भाई आपका क्या मकसद है, आपको क्यों नंबर चाहिए, व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट.
अगर कोई अपने जो है जो बिजनेस मैटर है वो अगर इन प्लेटफॉर्म्स पे जो है नहीं एड्रेस कर पाता, तो इट मीन्स कि प्राइवेट में आकर जो है या पर्सनल नंबर या बिजनेस नंबर लेकर भी उसके पास कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आपके साथ वो डिस्कस कर सके, क्योंकि दोज हु आर बिजनेस माइंडेड या दोज हु हैव वर्क माइंड या जो कोई बिजनेस करना चाहते हैं वो आपसे जो है उन प्लेटफॉर्म्स पे भी रहकर बिजनेस कर सकते हैं, वो उस पर रहकर भी बता सकते हैं कि ओके भाई मेरा जो है ये बिजनेस है, मेरा इस चीज़ से ताल्लुक है, तो आप मुझे जो है इस डायरेक्शन में गाइड करते हैं। बट अगर कोई आपको ये कहता है कि जी आप मुझे अपना पर्सनल नंबर दे दें या आप अपना बिजनेस नंबर दे दें, और आप आगे से पूछते हो कि भाई आपको किस चीज़ के लिए चाहिए, आपका जो है बैक एंड पे जो है क्या मोटिव है, यू हैव टू अंडरस्टैंड पीपल्स मोटिव। अगर कोई आपको उसका माकूल जवाब नहीं दे सकता तो इसका ये मतलब है कि उसके पास जो है बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो बाज़ लोग होते हैं ना, उनके माइंड में ये होता है कि भाई अगर मेरे पास सो एंड सो बंदे का जो है नंबर होगा या बंदी का नंबर होगा तो भाई दिस इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ ट्रॉफी। तो लोग आपको ट्रॉफी के तौर पे जो है लेकर चलते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको कॉल कर लेंगे और आपके जो है यानी 10 लोगों में वो बैठे होंगे और वो 10 लोगों को जो है ना फ़ख्र के साथ बता रहे होंगे जी सो एंड सो हैं ये, एंड इनका जो है यहाँ से ताल्लुक़ है और ये हैं, और वो आपसे जो है फ़ोन पे जो है बात कर रहे होंगे। सो ऐसे लोगों को से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, इनको नंबर देने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका टाइम बहुत कीमती और वो टाइम आपका ज़ाया हो जाता है। सो ट्राई टू टेक द टाइम बिफोर लॉक्स। ठीक है, टाइम की वैल्यू को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, क्योंकि जो आपका टाइम चला गया ना इस टाइम ने वापस नहीं आना। आपको जो फैज़ की बातें जो है 3-4 मिनट में पता चल जाती हैं ना, वो आपको जो है ना यानी फिर आपको जो है नहीं पता चलेंगी। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ टाइम, कि आप उस टाइम को किस तरीके से वैल्यू कर रही हैं या उस टाइम में आप क्या सीख रही हैं, और जो आप सीख रहे हैं इज़ इट एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ या इट्स नॉट एडिंग एनीथिंग टू योर लाइफ। ओके, सो दिस इज़ अनदर थिंग। अच्छा, जब डिजिटल अवेयरनेस की बात की जाए तो एज आई सेड कि भाई जो जेन जी है, जो हमारी यंगर जनरेशन है या जो हमारे बच्चे हैं, यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई जो डिजिटल प्रिंट है ना वो रह जाता है। आपकी पिक्चर्स, आपके टैग्स, एवरीथिंग इज़ ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म, चाहे वो आपके जो है गूगल क्लाउड्स में हो या बैक एंड पे हो या आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें हो। सो डिजिटल प्रिंट आपको तो रह रहा है। अब वो डिजिटल प्रिंट आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको जो है कैसा डिजिटल प्रिंट छोड़ते हैं। इज़ इट अ पॉजिटिव वन या इज़ इट सच काइंड ऑफ डिजिटल प्रिंट कि जिसके लिए जो है फिर आप जो है जो साइबर क्राइम के अदारे हैं उनके साथ रजू कर रहे हैं कि भाई हमारे जो है प्लेटफॉर्म पे सो एंड सो जो है चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो इनको जो है आप इरेज कर दें या इसको रिट्रीव कर दें, तो ये कर दें वो कर दें। तो आपने अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए एजुकेट करना है। एंड यू नो व्हाट, this is not just the responsibility of the influencers या educationists, it's also the responsibility, बल्कि जो number one responsibility है ना, that's the responsibility of the parents. as a parent आपने अपने बच्चों को ये चीज़ समझानी है, ये बतानी है। and then you know what, जितने ज़्यादा डिजिटाइजेशन हो रही है आपने अपने बच्चों को ये भी बताना है कि भाई वो कौन सा टाइम है, वो कौन सी एज है जिसमें आपने जाकर अपने बच्चों को इन चीज़ों के साथ एक्सपोजर देना है। तो अगर आप जो है हर चीज़, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है, उस टाइम से पहले आप जो है बच्चों को वो अवेयरनेस नहीं दे सकते। जिस तरह जब बच्चा छोटा होता है तो आप उसको जो है लाइक यू स्टार्ट विद ABC एंड द नेम्स ऑफ फ्रूट्स एंड नंबर्स, और ये चीज़ें जो है सिखाते हैं, एंड द सेम गोज़ ऑन इन द स्कूल। सिमिलरली जो है व्हेन यू आर जब आप टीन्स में आते हो, टीन्स में you start educating your children about different topics, about good touch, about bad touch, about gender, about how to prevent yourself from people, या behaviors के बारे में आप जो है उनको बता रहे होते हो कि भाई इस तरह के जो है लोग आपसे जो है अगर इस तरीके की बात करें तो आपने किस तरह हैंडल करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेंसिटाइजिंग योर चिल्ड्रन जब आपके बच्चे टीन्स में आ रहे हैं। देन आपके बच्चे जब एडल्टहुड में जा रहे हैं तो उनके साथ आपकी कन्वर्सेशन और तरह की है। देन यू स्टार्ट एड्रेसिंग डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट इश्यूज which are pertinent to their own physiology, their own development, and also the development of others जो उनके साथ जो है in contact आ रहे हैं।
किसी बड़ों की किस तरह इज्जत करनी है, छोटों से किस तरीके से बात करनी है, ये सारे जो है वो लाइफ स्किल्स हैं जो आप बच्चों में जो है इनकलकेट करे होते हैं साथ के साथ। सो दीज आर द थिंग्स जो आपने करनी है एज अ पेरेंट करनी है। एज अ पेरेंट अगर आप खुद एनलाइटेड नहीं होंगे, खुद एजुकेटेड नहीं होंगे, खुद आपको सेंस नहीं होगी, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि भाई वो कौन से ब्लंडर्स हैं विच यू आर गोइंग टू फेस वेरी सून अगर आप अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करते। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप खुद एजुकेट हो। आपका बच्चा जिस एज ब्रैकेट में जो है आने वाला है, उससे पहले आप अपने आप को एजुकेट करें, उससे पहले आप अपने आप को एनलाइटन करें। चाहे आप उसे बुक से एनलाइटन करें, चाहे आप ऐसे लोगों के साथ जो डिस्कशंस करें जो कि उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। जस्ट एज यू नो, जब प्रॉब्लम्स हमारे पास हमें पड़ जाती हैं या हम किसी बीमारी से दो चार होते हैं, तो हम उसके लिए किसी एक्सपर्ट को ढूंढते हैं जो उस फील्ड का जो है माहिर हो। सेम इज़ द केस कि भाई जब आपके बच्चे ग्रूम कर रहे होते हैं, यू हैव टू लुक फॉर एन एक्सपर्ट कि भाई ये वाला जो इशू है इसको किस तरह एड्रेस करना है। कैन बी काउंसलर्स, कैन बी एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड, कैन बी एनी वन। तो आप उनसे बात कर सकते हैं। यू हैव टू ब्रॉडन योर सर्कल। वो जो सर्कल ऑफ फ्रेंड्स है, वो जो सर्कल ऑफ कलीग्स है, वो जो सर्कल ऑफ एक्सपर्ट्स है, यू नीड टू ब्रॉडन दैट। जब आप उसको ब्रॉडन करते हैं तो देन यू गेट टू टॉक ऑन डिफरेंट इश्यूज विद डिफरेंट पीपल। इन द सेम वे जब आपके बच्चों को जो है वो सर्टन प्रॉब्लम्स फेस आ रहे होते हैं, तो यू आर इन दैट पोजिशन कि भाई आपने अपने बच्चों से उस पर्टिकुलर एरिया को किस तरह एड्रेस करना है। इफ़ यू आर अ फीमेल, इफ़ यू आर अ मदर, तो आपने जो है आपका जो बेटा है उसे उस इशू पे किस तरीके से बात करनी है। इफ़ यू आर अ फादर, आपकी बेटी है, तो यू नीड टू नो कि एज अ फादर आपने अपनी बेटी से उन इश्यूज़ पे किस तरह बात करना है। तो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे होते हैं और वो उनकी भलाई के लिए ही चाहते हैं जो भी वो करते हैं। सो यू नीड टू एड्रेस दीज इश्यूज इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे दे कम टू दैट एज। किसी से यानी बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि यू कांट टॉक टू योर चिल्ड्रन रिगार्डिंग दोज टॉपिक्स जब तक वो उस एज में नहीं आते, क्योंकि वो कहते हैं ना, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। सो वो नॉलेज जो कि एज से पहले किसी भी बच्चे के ऊपर जो है ठोंस दिया जाए, तो वो बच्चे के लिए हजम करना भी मुश्किल होगा और अंडरस्टैंड करना भी। सो वक्त से पहले तो आपने किसी को भी कोई गाइडेंस नहीं देनी होती। सो दिस इज़ पर्टिकुलर टू द रोल ऑफ पेरेंट्स और गार्डियंस, जो चाहते हैं कि भी उनके बच्चे सही लाइन पे रहें, सही पटरी पे रहें, तो उन्होंने उनको एजुकेट करना होता है। क्योंकि विदाउट एजुकेशन जो है ना, विदाउट एजुकेशन क्या होगा, बच्चों को समझ नहीं आएगी। दे वुड एंड अप कंफ्यूज, दे वुड एंड अप लुकिंग फॉर आंसर्स फ्रॉम पीपल जिनके शायद उनको पास नहीं जाना चाहिए। सो एज अ पेरेंट आपको अपना रोल प्ले करना है। यू हैव टू प्ले दैट रोल ऑफ बीइंग अ पेरेंट, ऑफ बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, ताकि आगे जो आपका बच्चा है दैट ऑल्सो बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर ड्यूटी एज वेल। और देन अगेन अगर जो है एज अ पेरेंट यू नीड टू ट्रस्ट योर चाइल्ड एज वेल। अपने बच्चों के साथ दोस्ती करें, अपने बच्चों को जज ना करें। अगर आप अपने बच्चों को जज करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपके बच्चों में फियर इनकलकेट हो जाएगा। तो वो अपनी जो बात है, हो सकता है कि वो पहले आपसे बात शेयर करते हैं, पर आप उनको डांट दें या आप उनकी बात ना सुने या आप उनको किसी भी तरीके से रिब्यूक कर दें, आप उनको कहें भाई आप झूठ बोल रहे हो, मुझे आपकी बात पर ट्रस्ट नहीं। तो उससे क्या होगा, उससे बच्चे आपसे बात करना बंद कर देंगे, वो आपसे डरना शुरू कर देंगे। एंड एज अ पेरेंट यू डोंट वांट कि भाई आपके बच्चे आपके पास ना आए, क्योंकि बच्चे जब डरेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, तो वो फिर जाकर जो है और लोगों से या अगेन वैलिडेशन ढूंढेंगे, जो कि ऑनलाइन अगर वो वैलिडेशन ढूंढ रही हैं तो it would come in many forms. It would come in the form of manipulation, it would come in the form of wrong friendships, it would come in the form of many gruesome results. So उन gruesome results से बचने के लिए it's very necessary एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों को ट्रस्ट करें। डोंट बी जजमेंटल, लिसन टू देम, बी पेशेंट। जिस तरह आपके पेरेंट्स आपके साथ जो है विथ पेशेंस उन्होंने आपको ग्रूम किया, आपको बड़ा किया है और आपकी हर बात उन्होंने तवज्जो से सुनी है, इन द सेम वे एज अ पेरेंट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने बच्चे की बात जो है तवज्जो से सुने, उससे ही बात करें, गलत बात करें। भी देखिए, बच्चों में और बड़ों में फ़र्क होता है और वो फ़र्क यही होता है जो कि एक्सपीरियंस का फ़र्क होता है। आप अगर इस एज में पहुँचे हैं या मेच्योरिटी के इस लेवल पे हैं, तो इट मीन्स कि भाई यू हैव एक्सपीरियंस लाइफ एंड नाउ यू आर इन दैट पोजीशन कि आप अपने बच्चे को गाइड कर सकें।
क्योंकि यू योरसेल्फ वर अ चाइल्ड सम टाइम. सो आपको आपके टाइम में आपके पेरेंट्स ने जिस तरह ग्रूम किया, इन द सेम वे आपने अपने बच्चों को ग्रूम करना है. यू हैव टू बी पेशेंट. और आई वुड से कि पेशेंस जो है नाउ इट्स अ नीड, क्योंकि बहुत पेरेंट्स हैं जिनमें ये पेशेंस है ही नहीं. सो उनमें जो है पार्टनर्स में आपस में जो है पेशेंस नहीं है एक दूसरे के लिए, पेरेंट्स में बच्चों के लिए पेशेंस नहीं है, बच्चों में पेरेंट्स के लिए पेशेंस नहीं है. सो यू नो इट्स अ लाइफ साइकिल. जो पेशेंस होती है ना, ये एक लाइफ साइकिल की फॉर्म में चलती है. व्हाट यू गिव इट कम्स बैक टू यू, एंड एवरीथिंग हैपन्स दिस वे. सो you as a human being, and if you want to be a good human, आपके जो है फोकस ये होना चाहिए कि you should be on the giving end. So keep on giving without expecting anything in return. If you are doing good, if you are on the right path, और आपको लगता है कि आपके इस एजुकेशन से लोग भी अपने गलत पाथ को जो है चेंज कर लेंगे, एंड दे विल ऑल्सो बी ऑन द राइट पाथ, तो कीप ऑन एजुकेटिंग. और अगर जो है लोगों को लगता है कि उनको जो है आपको आपकी बातें नहीं सुननी, आपकी बातें नहीं फॉलो करनी, तो देन देयर आर सो मेनी पीपल जिनको आप फॉलो कर सकते हैं. एंड देन यू कैन ट्राई फॉर योर सेल्फ कि भाई आपको जो है किस पाथ पे जो है फ़ायदा हो रहा है. सो दिस इज़ समथिंग जो कि आपने खुद अपने लिए जो है डिसाइड करनी है. नो वन कैन टेक दिस डिसीजन फॉर यू. बट येस, जब तक आप पेरेंट्स हैं, जब तक आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपने बच्चों को ग्रूम करना है, उनको फॉर लाइफ तैयार करना है टूवर्ड्स अ न्यू फेज ऑफ देयर लाइफ, तो आपने ये काम करते रहना है विदाउट एनी विदाउट एनी डाउट, विदाउट इवन थिंकिंग कि भाई ये जो है रोड यानी इट्स अ टफ रोड, और हो सकता है ये रोड एंड होने से पहले आप खुद ख़त्म हो जाएं. बट यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. और यही कंसिस्टेंसी आपने अपने बच्चों को सिखानी है, और उनको आपने इसी तरीके से ग्रूम करना है. ओके, लेट मी जस्ट टेक योर कमेंट्स. हारून अली, एरिड यूनिवर्सिटी. ओके, एरिड यूनिवर्सिटी में आई डोंट नो, मैं तो एरिड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी, तो मैं तो आपको जो है एरिड यूनिवर्सिटी की कोई एग्जांपल नहीं दे सकती. स्कॉलर वसीम खान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. फ़कीर निज़ाम सुमरो, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट and joining this session. Okay, so you know what, one of the points which is left, it's that कि भाई आपने जो है ना हेल्दी ऑफलाइन फ्रेंडशिप्स को पे फोकस करना है. देखिए, जो डिजिटल वर्ल्ड है ना, वो डिजिटल वर्ल्ड ही रहेगा. डिजिटल वर्ल्ड में जो है इट्स जस्ट लाइक अ मूवी. जो डिजिटल वर्ल्ड है, जिस तरीके से आप जो है लाइक आप कोई प्रोग्राम देखते हैं या आप कोई मूवी देखते हैं, तो वो डिजिटली देख रहे हैं ना. इट्स नॉट दैट कि भाई आपके सामने वो मूवी चल रही हो. ऑब्वियसली वो मूवी कहीं बनी है, बट इट्स समथिंग फिक्शन, इट्स नॉट रियलिटी. बहुत सी ऐसी मूवीज होती हैं विच आर बेस्ड ऑन रियलिटी, बट बेसिकली योर फोकस शुड बी ऑन हेल्दी ह्यूमन इंटरेक्शंस. और वो हेल्दी ह्यूमन इंटरेक्शंस इसी तरीके से होंगी जब आप अपने बच्चों को ग्रूम करेंगे, जब आप उनको कहेंगे कि भाई आपकी जो यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स हैं, लाइक अगर आपकी जो है बेटी है, आप अपनी बेटी से कहेंगे भाई आपकी जो फ्रेंड्स हैं, जो आपकी गर्ल फ्रेंड्स, गर्ल यानी जो लड़कियां फ्रेंड्स हैं, नॉट गर्ल फ्रेंड्स, लड़कियां जो फ्रेंड्स हैं, तो उसका जब आप ज्वाइन करते हैं तो उसका और ही वर्ड बन जाता है. बट जो आपकी जो है क्लास फेलोज हैं, तो आप उनको जो है उनके साथ हैंग आउट कर लो, उन्हें घर पे इनवाइट कर लो. जब तक आप जो है बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं उनको घर पे इनवाइट नहीं करेंगे, उनके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ जो है मिंगल नहीं करेंगे, उनको जो है उन्हें कॉल करके उनसे बात नहीं करेंगे, तो यू वॉन्ट नो कि भाई आपके बच्चों के जो है किस किस्म की जो है लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप्स हैं, किन बच्चियों के साथ जो है उनका उठना बैठना है. सो एज अ पेरेंट दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ व्हाट आई सी एंड व्हाट आई फील इज़ कि बच्चे चाहे जो है स्कूल में हों, चाहे कॉलेजेस में हों, फैमिलीज दे लीस्ट बॉदर. उनको बस ये होता है कि बस ठीक है, हमारा बच्चा जो है फ्रेंड है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, ओके भाई ये उसके क्लास फेलोज हैं, आज जो है इसके साथ हैंग आउट हो रहा है, आज उसके साथ हैंग आउट हो रहा है. नो, एज अ पेरेंट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू शुड नो कि भाई आपके जो है बच्चों का किसके साथ फ्रेंडशिप है, किसके साथ उठना बैठना है. और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनके पेरेंट्स से बात करें. अगर आप मदर हैं तो मदर से बात करें. मदर से बात करके बहुत ज़्यादा आपको पता चल जाएगा कि भाई बच्चे का क्या टेम्परामेंट है, वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसके क्या इथिकल वैल्यूज़ हैं. सो एक फ़ोन कॉल इट्स सफिशेंट, बट फॉर दैट यू हैव टू लर्न टू बी अ पेरेंट.
अगर इफ़ यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटी तो फिर कल को जो है देन यू शुडंट हैव रिग्रेट्स। अगर खुदा ना खास्ता आपके बच्चे के साथ कुछ बुरा होता है, ऑनलाइन कुछ भी बुरा होता है, तो देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्योंकि जब बच्चे को जो है रेड फ्लैग्स आ रहे थे या कुछ भी हो रहा था, तो आपको भी तो बच्चा बता रहा होगा ना कि भाई आई एम फेसिंग सो एंड सो थिंग्स ऑनलाइन, और इस तरीके के जो है इन्वायरमेंट है, इस तरीके के जो है this is what happens online. Like every platform is different. Facebook is different, Insta is different, TikTok is different. So as a parent आपको अपने आप को ये awareness देनी है. You have to be enlightened कि भाई किस प्लेटफॉर्म पे किस किस्म के लोग आ रहे हैं, किस किस्म के जो है व्लॉगर्स हैं, किस किस्म के जो है कंटेंट या वैल्यू क्रिएटर्स हैं. यू हैव टू सी, यू हैव टू चेक कि भाई आपका बच्चा क्या देख रहा है, आपकी बच्ची क्या देख रही है, उसका टाइम किस किस्म के कंटेंट के साथ गुजर रहा है. यू हैव टू बी यू हैव टू बी मेंटली प्रेजेंट, यू हैव टू बी मैच्योर. सो ये जब आप में मैच्योरिटी होती है तभी आप जो है आगे अपने बच्चों को ग्रूम कर सकते हैं और तभी आप उनको प्रिवेंट कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग टुडेज सेशन. और इन द एंड आई वुड से कि फ्रेंडशिप्स जो है, अगर बच्चों की जो है आप चाहते हैं आपके बच्चे जो है फ्रेंडशिप्स करें, तो यू हैव टू सी कि भाई उनके फ्रेंड्स कौन हैं, एंड देन यू हैव टू टॉक टू देयर पेरेंट्स एज वेल. अगर आपके बच्चे जो है फ्रेंड्स दे हैव फ्रेंड्स, एंड मेक देम रियल फ्रेंड्स, नॉट ऑनलाइन फ्रेंड्स. उनको जो है पेरेंट्स को जो है इनवाइट करें, बच्चों समेत इनवाइट करें. जिस तरह व्हेन वी वर यंग, जब हम जो है कॉलेज गोइंग थे, तो हमारे पेरेंट्स ने तो हमेशा इनकरेज किया कि भाई आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर लो. उनके पेरेंट्स से जो है उन्होंने बात की. एट टाइम्स जो है पेरेंट्स को भी इनवाइट किया, विद फैमिली इनवाइट किया, यानी उसमें जो है बच्चे भी हैं, उसमें पेरेंट्स भी हैं. तो उसमें जो है ऑन लार्जर लेवल जो है आपकी फ्रेंडशिप जो है बन जाती है, पेरेंट्स के साथ बन जाती है, बच्चों के साथ बन जाती है. बट देन जब टाइम्स चेंज हुए तो फिर उसमें पेरेंट्स के पास टाइम नहीं रहा, एंड देयर लीस्ट बॉदर्ड कि भाई हमारे बच्चों की किससे दोस्ती है. ओके, बस ठीक है, बच्चे जो है आपस में मिल रही हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं है किसके पेरेंट्स क्या करते हैं, क्या उनकी जो है थिंकिंग है, व्हाट इज़ नॉट. तो ये जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं. और अब जो सिनेरियो जा रहा है दैट इज़ बच्चे टोटली जो है ऑनलाइन हो गए हैं. एंड ऑनलाइन के तो जो है देन अगर बच्चों को जो है आइडिया नहीं है ज़िंदगी का और दुनिया का आइडिया नहीं है, जाहिर है वो बच्चे हैं, उनको किस तरह आइडिया होगा. आइडिया तो एज एडल्ट्स आपको होना चाहिए ना, क्योंकि आप पेरेंट्स हैं, आप बड़े हैं. सो एज अ रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. सो जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेरेंट्स ने निभानी है. बच्चे जो है ब्लंडर्स करेंगे एंड दे विल हैव टू फेस लाइफ इवेंचुअली, एंड दे विल हैव टू लर्न द हार्ड वे अगर आप उनको वक्तों पे गाइड नहीं करते. सो पेरेंट्स का इट्स अ वेरी टफ ड्यूटी, इट्स अ वेरी टफ रोल. सो जो भी पेरेंट्स हैं दे हैव टू वो अपनी ड्यूटी से नेग्लिजेंस नहीं कर सकते. दे हैव टू टेक दिस रोल, दे हैव टू अबाइड बाय दिस रोल. उन्होंने अपनी ड्यूटीज निभानी है, और जितना जल्दी वो ये रियलाइज़ कर लें उतने अच्छे तरीके से वो उसको निभाना शुरू कर देंगे. एंड यू नो व्हाट, इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि भाई अगर जो है लाइक इफ़ टुडेज वीडियो हेल्प यू, या you think कि भाई there is someone who is in need of this message, या there's someone who is looking for this value which I have tried to add in this session, so do share my video with such people ताकि जो है वो भी फैज़ याब हो सकें इस वीडियो से. एंड if you people have any comments, do let me know what are your comments. For that purpose I'll have to go on the other platform and see कि भाई आपके क्या questions हैं, ताकि I'm able to take those questions. क्योंकि apparently I can't take your questions. Let me just see. And if there's someone जो कि live आना चाहता है तो तब भी आप लोग लाइव आ सकते हैं, क्योंकि earlier I was able to see you but now I'm not able to see you. Okay, so अभी आप मुझे जो है नहीं नज़र आ रहे. Right. Okay, so I think there's some error on the other platform जिसकी वजह से मुझे आप नज़र नहीं आ रहे, बट मैं यहाँ पर आपकी जो है
थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो है ले सकती हूँ। हारून अली, आपका जो क्वेश्चन है, आई विल व्हेन आई गो ऑफलाइन तो मैं आई विल सी कि आपने जो है किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, और एरिड यूनिवर्सिटी का आपने जो रेफरेंस दिया है वो किस कॉन्टेक्स्ट में रेफरेंस दिया है। सो आई विल गो एंड चेक अदर, क्योंकि हाफ जो बातें होती हैं, हाफ बातों से जो है I can't make the cue what you mean by that, so I have to go through the whole context कि भाई ये किस context में बात हो रही है. Okay, Yusuf Khan, Walaikum Assalam, I hope you're fine. Okay, yes, I'm fine, Alhamdulillah. Okay, so this is all regarding today's session, and tomorrow I'll have a live podcast with Dr. Arslan Akhtar Ali. Or tomorrow, yes, we are going to talk about an important topic, not pertaining to mental health issue, but it's something जो कि every one of us we do face that thing, खास तौर पे when we are professionally struggling. So it's more or less about professional struggles. So we are going to talk about that thing in tomorrow's live podcast with Dr. Akhtar Ali, which is going to be streamed. I will have to finalize the time, and then I'm going to share that post with you. So tomorrow again मेरे साथ जो है लाइव सेशन ज्वाइन कीजिएगा, और डॉक्टर अख्तर अली से आपके जो भी सवालात हों तो फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस, एंड आई विल टेक दोज क्वेश्चंस लाइव. टिल देन अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.